The cash for query scam continues to explode. TMC Member of Parliament Mahua Moitra, who has been accused of sharing her Parliament login credentials with businessman Darshan Hiranandani, has appeared before the Parliament's Ethics Committee a short while ago. The Ethics Committee will probe whether Mahua indeed shared her login details and took money, allegedly, to ask questions in Parliament. Meanwhile, sources close to India Today have revealed that Mahua's Lok Sabha portal was allegedly logged into 47 times from Dubai. According to sources as well, Mahua made several unaccounted foreign trips to countries like France, UK and the United States. Moreover, on Wednesday, TMC Chief and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee broke her silence for the first time since the controversy broke out. Claiming that an appropriate reply will be given on the issue, Mamata called it a result of vendetta politics. আমি আবার বলছি this is a political matter, political appropriate platform, they will give you the reply. But all are political vendetta that you people better know better than me. कल महुआ जी की पेशी है, कल कमेटी ऑफ एथिक्स के सामने वो हाजिर होंगे। अब कमेटी उसके बाद जो फैसला करेगी, मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद मेरा बोलना जो है ज्यादा उचित होगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसका भी मामला निपटेगा कि मेरा जो आरोप है कि महुआ जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया, महुआ जी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। Mahua Moitra, you have played with the security of Bharat, my country. You have given the login password which you were not supposed to do. And not only that, not only if proven guilty, you are a traitor of the nation, but you have also engaged yourself into corrupt activities. And why not? Ultimately, she is a TMC MP. उन पे आरोप है कि एक सांसद होके उन्होंने संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर किसी निजी कंपनी के हितों के लिए प्रश्न उठाए और उनकी ईमेल आईडी भी जो जिससे प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो भी विदेश में उसका दुरुपयोग किया गया है, जो रूल्स के अगेंस्ट है। तो महुआ मोइत्रा जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मीडिया में तो सरासर बहुत बातें आ रही हैं। अब कमेटी के सामने जाए, वो अपनी बातें रखें। गलत किया है तो उसकी जवाबदेही होती है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने गलत नहीं किया है तो उनको अवसर मिलेगा वो बात रखने के लिए। बंगाल की खदानों से लेकर पार्लियामेंट में प्रश्न उठाने तक ये पार्टी पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहाँ पर भी, बंगाल में भी भ्रष्टाचार करते हैं और यहाँ पर उनको कवर अप करने के लिए व्यापारियों से पैसा उठाकर उनके आधार पर प्रश्न करते रहे पार्लियामेंट में। अब इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। उन्होंने ये तो मान्य किया कि मैंने गिफ्ट लिए हैं, 2.5 लाख का, 3-3 लाख का, कोई कहते हैं बड़ा बैग लिए हैं और सामान लिया है। तो उसकी जानकारी वह दें कि किस प्रकार के गिफ्ट लिए उन्होंने और किस प्रकार का बाकी मामला है। परंतु ये तो सच है और ये उन्होंने मान्य भी कर लिया कि उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, किसी एक व्यापारी के कहने पर, किसी एक कॉर्पोरेट घराने के कहने पर प्रश्न उठाए हैं। Meanwhile, complainant and advocate Jay Anand Dehadrai has said that Mahua is trying to alter the narrative by trying to play victim. And I think the appropriate authority which is meant to deal with these issues is seized of this issue, and they will determine, basis whatever material is before them, what has to be done. I think ultimately the truth has to come out, and beyond that, I think it would be very inappropriate for anybody to comment on the committee and in terms of how the committee is conducting the proceedings. My colleague Jitendra Bahadur is now joining me live on this. Jitendra, क्या पूछताछ शुरू हो गई है और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे महुआ मोइत्रा से आज? देखिए पौलमी, करीब आधे घंटे हो गया है वो जो एथिक्स कमेटी है उसके सामने महुआ मोइत्रा पेश हो चुकी हैं और वो अपने बयान वहां पर दर्ज करा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले एक उनका जो लेटर है वो काफ़ी सार्वजनिक हुआ है और उसमें तमाम चीज़ों को लेकर के उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से ये कहा गया कि एथिक्स कमेटी
के अधिकार क्षेत्र को लेकर के भी उनकी तरफ से सवाल उठाया गया और ये कहा गया कि एथिक्स कमेटी आपराधिक मामलों को लेकर के वो इस पर सुनवाई नहीं कर सकती है, इसके लिए किसी जांच एजेंसी को इसमें रहना चाहिए। तो इस तरीके की बात उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एथिक्स कमेटी के सामने वो आज पेश हो रही हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया कि वो ये चाहती हैं कि दर्शन हीरानंदानी ने जो हलफनामा दिया है उस हलफनामे में उनकी तरफ से सही तरीके की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए वो ये चाह रही हैं कि एथिक्स कमेटी के सामने दर्शन हीरानंदानी को बुलाया जाए और वो उनके सामने बैठ करके उनसे जिरह कर सके। इसी तरीके की बात उनकी तरफ से जय अनंत जो एडवोकेट हैं जिनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के भी ये कहा गया कि हम जो एथिक्स कमेटी है उसके सामने जय अनंत से कुछ सवाल करना चाहते हैं और वो इसके लिए जो चेयरमैन है एथिक्स कमेटी के उसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखा है। तो कई सवाल उनकी तरफ से इस बात को लेकर के खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एथिक्स कमेटी के सामने उनको कई चीजों का जवाब भी देना होगा। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो उनका आईपी एड्रेस इसके अलावा जो पासवर्ड था उसको शेयर किया गया था और उस पासवर्ड के जरिए जो उनकी ईमेल आईडी थी उसको 47 बार से ज्यादा इसको खोला गया था दूसरी जगहों पर। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी बात को लेकर के एथिक्स कमेटी के पास जो उनकी शिकायतें आई थी उसको लेकर के उनकी तरफ से उनसे जवाब लिया जा रहा है। करीब आधा घंटा का समय हो चुका है एथिक्स कमेटी के सामने इस वक्त मौजूद है महुआ मोइत्रा और उनसे तमाम सवाल इस वक्त किए जा रहे हैं। कई मेंबर्स भी मौजूद हैं जो कि उनसे इस बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आखिर जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो उसको लेकर के किस तरीके का जवाब देती है।